आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Just want to welcome you all in Jesus name। आंटी आज हमारे बीच में काफी दिन बाद आई है। And then we have David। Welcome David। It's been a long time we haven't seen you। Hallelujah। Ricky। They both look alike। Ricky। For a moment I thought it was David। Anyways, hallelujah। Thank you Jesus। Thank you Jesus। A very happy new year to you all, and I know that the Lord is going to do great things in your life in 2025। I've been spending some time in prayer, and this is what the Lord has put in my heart। It is a new beginning। नया साल new beginning है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगा और वो अपना काम जरूर से करेगा। Amen। Amen। Hallelujah। 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 Sorry, Ricky. I've been thinking about David, and I just clicked into my mind that it's David. So there's no difference between you and him. Both look alike, and knowing you since your forever, basically since your childhood, I thank God that you are here this afternoon and joining us to be with us. And I pray that the presence of the Lord will touch your heart too. Amen. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer and ask Stephanie to lead us in a word of prayer. Let's all pray. Dear Heavenly Father, we come before you, God Almighty. We thank you for this day you've given us. We thank you for this new year and the new beginning, God Almighty. Lord, as we start this new year, Lord, we pray that you be the focus of this year, God Almighty. And Lord, that we draw closer to you, God. Lord, bless each and every one of us that are here and those who are online as well, God. Lord, I pray a special blessing and anointing on each and every one of us. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen। Amen। Hallelujah। धन्यवाद है। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। हम परमेश्वर के धन्यवाद देते रहे हर एक समय। वो महान परमेश्वर है। आमीन।
आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें है प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। इस हफ्ता हमने एक रिकॉर्डिंग किया जो टेलीविजन प्रोग्राम के लिए, and the scripture was taken from Psalms chapter 119 verse 74. For a moment I didn't understand exactly what that scripture was all about. So I started reading and asking the Lord, and the Lord showed me something. It's a new beginning, एक नया शुरुआत है तुम्हारे जीवन में. Not in just only in my life, in everyone's life. जैसे हम लोग नया साल में आते हैं, we make a New Year's resolution to do things in the new year and achieve our goals basically. Sometimes we surrender so quickly, you know, like हम एक महीना करेंगे, एक दो हफ्ता करेंगे, एक महीना में, and we just kind of just छोड़ देते हैं. But one of the things that the Lord put in my heart to share is कि हम लोग डेविड की तरह खड़ा होकर कह सके कि when people see us, they will know who we belong to. They will know that we serve a living God. हम लोग एक सच्चा परमेश्वर की सेवा करते हैं, and the blessings that come in our lives because of serving Him, उसकी आराधना करने के लिए, I know that the Lord is going to do it for you. If you make this resolution, this is something that I want you to do this year. Read the book of Psalms every day, at least one chapter. इसमें से तुम्हें encouragement मिलेगा, इसमें से तुम्हें प्रार्थना के मिलेगा, and you will be encouraged to pray and ask God to deliver your. This is all. उसमें जितना है, it's mostly David की life experience है. It was written by David and Asaph, but both of them, they've written exactly the same thing. And when we read about them, one of my favorites is Psalms 23, Psalms 91, Psalms chapter 1, Psalms chapter 32, Psalms 119. There's so many, so much we can go. And there's a time to praise, there's a time to do things for the Lord, there's a time to come before the Lord. Psalms chapter 50, verses 14 में कहता, pay your vows unto the Most High God and call upon Him in the days of your trouble and He will answer you. Hallelujah. यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और करीब आए, उसकी आराधना करें. यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला. He is the one that will give you victory in your lives. Whatever you do, you will prosper because the Lord is with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें मदद करेगा. शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना. Don't worry about the enemies around you. जैसे डेविड कहता है Psalms 23 में, you prepare a table before me in the presence of my enemies. हम लोग जब भोजन करने जाते हैं, when we go to have our meal basically, do we care about any person around us? Not really. We care about the food that is before us. We want to enjoy the food. We're not concerned about the phone calls or anything. We might not answer. It's the ungodly hour. We don't want to answer the phone. But then sometimes we do answer the calls. But main thing है कि हम लोग अपना भोजन पर ध्यान धरे. तो डेविड जैसे बताता है कि you prepare a table before me in the presence of my enemies. Right? मतलब कि हमारा जो ध्यान है उस भोजन पे है. भोजन कहाँ है? Right? Jesus ने कहा है, I am the living bread. Jesus ने कहा, I am the living water. हम लोग की क्या जरूरी है? We need bread and water to nourish us basically. Right? Of course, there is other foods that come along with it, but the main thing is khana or pani. Without that, we cannot survive. We will die. Of course, we need air to breathe. Hallelujah. तो आज यही बताना चाहते हैं कि just worship Him. Just forget about everything what has happened in the past. God is going to make everything new. नया रास्ता रहेगा, नया दौर रहेगा तुम्हारे लिए. It's a new beginning, and God is going to. I'm not preaching at this moment. This is something what the Spirit of the Lord has put in my heart to tell you. As we prepare our hearts for the communion today, just open your hearts and ask the Lord to forgive you. Ask Him to
take you to the next level. सिर्फ वही जगह पर नहीं हम लोग रहे, राइट? जैसे बेबी को हम लोग जब देखते हैं तो शुरुआत से वो दूध पीता है, राइट? जैसे जैसे बड़ा होता है थोड़ा सॉलिड फूड हम लोग देते हैं, सीरियल्स देते हैं, then we start giving him some other foods, and then we give him something more जो हम लोग खाते हैं, and then eventually the baby starts to feed on whatever जो वो बेबी नहीं रहता है, वो टोटला बन जाता है, वो चाइल्ड रहता है, and starts eating regular food. तो इसी तरह हम लोग भी प्रभु में आकर शुरुआत से हम लोग we were taking the milk scripturally है, but now we've been in the Lord for so long, we should be eating solid food. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
blood that flows from Calvary, the blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर को. Father, we thank you. We thank you, Jesus. with all our heart, with all our mind, with all our soul, O God Almighty. We praise you, Lord. We worship you, God Almighty. Yes, Lord. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone.
है to worship you, Lord, to be near you, O God Almighty, to be closer to you, Lord, in this new year, God Almighty. Hallelujah. To build our faith in you, to build ourselves in you, O God Almighty. I pray for each and every person that is here, O God Almighty. Those that are online, O God Almighty. Those that are joining us right now, those that will be joining us later on, O God. I pray for each and every one of them, O God Almighty. Be with them, Lord. Comfort them, O God Almighty. Touch their hearts, O Lord. Hallelujah. As they open their hearts, Lord, fill them with your presence, O God Almighty. Those that are sick, O God Almighty, I pray for healing in Jesus' name, because by your stripes they are healed, O God Almighty. We believe it and we receive it in Jesus' name. You sent your word to heal our sickness and diseases, Lord. I praise you and I thank you, Lord, for the encouragement, O God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The blood that you shed on that cross of Calvary, Lord, not just only to forgive us from all our unrighteousness, Lord, but to heal us, O God Almighty. I thank you, God Almighty. I just commit them all into your hands right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may be seated. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से, और आज के जो प्रचारक है भाई इज़ेकियल है, तो actually he might be taking us like in the preaching for the next few weeks के लिए, so let's welcome him. Amen. Praise the Lord. आज जो वचन प्रचार करना चाहता है, it's basically just repeating what we had during the worship. हम लोग के जो एक इस साल के जैसे नवा शुरुआत है, और इसमें ये बताना चाहता है कि हम लोग के लाइफ में भी एक नवा शुरुआत होना कभी कभी बहुत ज़रूरत है। एक रोज जब एक जो मीम है उसको देखता रहा तो बोलता है कि बना लिया नवा साल, कुछ बदला डेट के अलावा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा लाइफ है उसमें एक बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। देयर नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट, और जो हमारा ज़िंदगी है उसे देखकर लोग ये कह सके कि परमेश्वर हमारा साथ है, और वो जो परमेश्वर है वो ताकतवर है, शक्तिमान है, वो हमें कहीं से भी उठाकर एक नवा स्थान पे रख सकता है। और जो एग्जाम्पल आज हम लोग देखेगा वो हम लोग के मिलता है बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 से। हम लोग यहाँ पर वेस 8 से लेके वेस 24 ले देखेगा, लेकिन हम उसमें से सिर्फ कुछ ही वेसेस है वो पढ़ेगा, जो थोड़ा जस्ट इम्पोर्टेंट है, बचा को कुचा को मैं समराइज कर दूंगा। तो यहाँ पर वेस जो 8 और 9 है, यहाँ पर गॉड इज टॉकिंग टू प्रोफेट एलाइजा। तो यहाँ पर बताता है, एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम सेइंग, किसके पास आया? प्रोफेट एलाइजा के पास, और उसको बताता है अराइज गेट thee to Zarephath, right? यहाँ पर बताता है अराइज गेट गो टू Zarephath। अगर हम लोग जो नाम है जो ज़ेरफत में itself वो नाम काफी मीनिंगफुल है। हम लोग जब धर्मशास्त्र पढ़ता है, all these places and the names that were in the places they meant something। और जो ज़ेरफत है यहाँ पर ये एक ऐसा देश रहता रहा, जैसे अगर हम लोग फिजी के बारे में सोचता है, जब लोटोका के बारे में सोचता तो they call it like a sugar city, because वहाँ पर चीनी बनता है जस्ती करके। और जो ये जगह रहा ज़ेरफत, यहाँ पर जो मेटल है उसको लोग रिफाइन करता रहा। So this city Zarephath was known as a place
for refining. यहाँ पर they took what was old and made it into something that was new and something that was valuable. तो यहाँ पर जो ज़रफ़त है, ये जो स्त्री रहा वो ज़रफ़त में रहता रहा, and she needed a refining in her life. क्योंकि आगे बताता है यहाँ पर arise, get the go to Zarephath which belonged to Zidon, meaning वहाँ पर Zidon जहाँ बगल में रहता रहा, and dwell there. You go and live there. Behold, I have commanded a widow woman there to feed you. तो वहाँ पर एक स्त्री रहा जो widow रहा, और गॉड उसको बताता है कि प्रोफेट एलाइजा को बताता है कि तुम वहाँ जाओ और there's a widow and she will feed you. Now अगर हम लोग इसका थोड़ा पहले आकर देखेंगे तो एक चीज जो हमें मिला, it was very interesting. जैसे हम लोग कभी कभी जब घर आता है and there is no food and we are hungry, तो हम लोग जैसे अभी के समय में हम लोग कौन सी करते हैं, हम लोग उबर ईट्स कॉल कर देते कि वो घर पर लेकर कर हमें खाना देकर चले जाता है. और जो प्रोफेट एलाइजा रहा, यहाँ जाने से पहले he had his own Uber services. उसको जो रेवन रहा वो लेकर कर खाना देकर जाता रहा हर वक्त. तो यहाँ पर जब हम लोग देखता है तो उसको गॉड बताता है कि बोले तू जाओ वहाँ ज़रफ़त पे and I'll command a lady, a widow to feed you. और शायद अगर हम लोग रहता उसके जगह तो पहला सवाल ये आता कि यहाँ तो रेवन लोग खाना दे, why if I go to that new place can the ravens continue to feed me, right? लेकिन वो हम लोग देखता है एलाइजा नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में अगर हम लोग देखता है यहाँ पर समराइज कर देगा तो बता हुए बोले कि Elijah did what God told him. So he got up and he went to this place in Zarephath. और वहाँ पर उसका मुलाकात उस स्त्री से हुआ. और जब वो स्त्री के पास गया, went to widow, और हम लोग जानता है पहले के ज़माना में जब यहाँ पर widow रहे, they weren't always too well off. और वही हाल ई widow के भी रहा. And जब उसके पास पहुंचा तो उससे बोलता है कि तुम हमें कुछ पा नहीं सकता है दे. And the widow got up, she was going to get him water. और उसके पता है कि जब तुम आना तो bread भी लेके आना. And the widow told him, I don't have any bread. तुम्हार जो परमेश्वर है तुम्हार, उसके नाम लेके बताता कि हमारे पास एको ब्रेड नहीं है, बट हमारे पास कौन सी है, हमारे पास थोड़ा से आटा है और कुछ ही ड्रॉप्स ऑयल बचा है जिससे आई एम गोइंग टू मेक द लास्ट मील फॉर माई सेल्फ एंड माई सन. तो विडो के लाइफ में सिर्फ दो ही लोग हैं, इट्स हर एंड हर सन, एंड देयर इज नो इनकम कमिंग इन देयर लाइफ. और उसको बताता है कि दिस इज द लास्ट ब्रेड दैट वी आर गोइंग to eat, and then after that we are going to starve to death. हम लोग अपन लाइफ में सोचे कई समय हम लोग एक ऐसा सिचुएशन पे आया है कि we don't know what tomorrow will bring. हम लोग नहीं जानता है कि हम लोग बिहान से कैसे गुजर के जाएगा. हम कुछ लोग क्या हम लोग के बीच में शायद it's probably not so much of a financial issue, but we are going through another difficult situation. और हम लोग नहीं जानता है कि उस सिचुएशन में से कैसे निकलेगा. And this lady, basically that was the last food that he had. उसके आखिरी उम्मीद रहा कि इसके बाद फिर I have nothing left. कभी-कभी हम लोग भी वही रकम सोचता है कि इसके बाद हम लोग के आगे कोई रास्ता नहीं है, सब बंद हो गया है. And this is what that lady was saying here. She said, I have nothing left after this flour and oil. After I make this bread, I have nothing left. I don't have any means to get through the next phase. लेकिन उसको प्रोफेट एलाइजा क्या बताता है कि बोलता है
तू जा और हमारे लिए वो जो ब्रेड बनाएगा उसमें से कुछ मेरे पास लेके आओ। एंड द लॉर्ड इज सेइंग कि जब तुम वो ब्रेड हमें लेकर कर देगा तो तुम्हारे घर में कभी जो आटा है और तेल है उसको कमती नहीं होगा। और बोले जबले ये जो फेमिन चलेगा तबले तुम्हारे घर में खाना भरा रहेगा। और जो फेमिन है अगर हम लोग थोड़ा पहले जाकर देखता है तो it was going to last about 3 years. So this lady's life it turned from the last set of flour जो थोड़ा ही आटा बचा रहा जिससे एक ही समय का वो ब्रेड बना सकता रहा और उतने ही तेल बचा रहा to abundance of blessing for 3 years कि 3 साल वो उसको कुछ खाने पीने के वरी नहीं करेंगे। तो कई समय जब परमेश्वर हमारे लाइफ में इंटरवीन करता है तो हमारा लाइफ भी उसी तरह बदल सकता है। आज अगर हम लोग से उस स्थान पे आया है कि वी डोंट नो व्हाट टुमारो ब्रिंग्स, हम लोग नहीं जानता है कि हम लोग कैसे जाएगा। हम लोग अपन हालात से अगर आज हार चुका है तो हम लोग आज याद रखें कि वो परमेश्वर जो है जब हम लोग उसमें विश्वास रखते हैं और अपना जो जिंदगी है उसके तरीके से चलते हैं और हम लोग जो अपना फेथ है उस पर रखते हैं, हमारा लाइफ भी बदल सकता है, हमारा सिचुएशन भी बदल सकता है। हम लोग जो हमारे पास अगर आज कुछ नहीं है, एक रास्ता नहीं दिखाता है, तो उसमें से भी परमेश्वर जो है वो रास्ता निकाल सकता है। हम लोग जो एक और एक वेस देखेगा जो मिलता है बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 43 में, और हम लोग वेस 18 को यहाँ पर देखेगा और यहाँ पर बताता है वेस 18 में कि I am remember ye not the former things, neither consider the things of old, कि हम लोग पुराने चीज में जो हमारा हालात है हम लोग उस पे फोकस नहीं रखे, लेकिन हम लोग जो आने वाला है उस पे फोकस रखे। और वेस 19 में यहाँ पर बताता है, अगर हम लोग और आगे जाएगा तो यहाँ पर बताए Behold, I will do a new thing। क्या आज हम लोग विश्वास ये कर सकते हैं कि जो परमेश्वर है आज हमारे लाइफ में वो कुछ नया करना चाहता है? क्या आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लाइफ में कुछ नया कर सकता है? टू क्वेश्चंस, क्या आज हम लोग चाहते हैं परमेश्वर कुछ नया करे, और क्या हम लोग आज विश्वास करते हैं परमेश्वर कुछ करी, और क्या आज हम लोग विश्वास करता है कि परमेश्वर कुछ कर सकता है? He is powerful enough to do something in our life. Now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. हम लोग अगर जैसे हम लोग गांव में जो इलाका में बड़ा भया है वो एक जंगल का इलाका रहा, और जब हम लोग विल्डरनेस जो हम लोग के पास भी से काफ़ी जंगल का रास्ता रहा, जब हम लोग रास्ता से गुजर के जाता रहा तो हम लोग के जो पैर रहता रहा उसमें कभी कांटा से चोट लग जाता था, कभी डाली से चोट लग जाता था, और उसके बीच में से जो रास्ता निकालने का वो बहुत कड़ा काम है। उसको हम लोग जो छुरी से रास्ता बनाते जाना पड़ता रहा, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पाथ यूजुअली। लेकिन जो परमेश्वर है वो विल्डरनेस में वो रास्ता बना सकता है, और जो रीवा है वो बोलता है डेजर्ट में हम लोग जानता है कि पानी हर वक्त नहीं मिलता है, और परमेश्वर बताता है कि हम उसमें भी एक पूरा रीवा बना सकता है। और वेस 19 में भी हम लोग देखेगा परमेश्वर हम लोग के वेस 20 में हम लोग देखेगा तो वहाँ पर भी बताता है परमेश्वर की जो ऐसा सोच है जो लगता है कि हम नहीं कर सकते, जो हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर वो है वो सब कर सकता है। तो आज अगर हम लोग अपन लाइफ में एक बदलाव चाहता है तो हमारा निगाह जो है वो उठाकर परमेश्वर के ऊपर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हमारे लाइफ आज उस दिशा में जाता है कि हम नहीं जानते हैं कि ध्यान हमारे ज़िंदगी में क्या होगा,
ध्यान हम कैसे रहेंगे, कि क्या हमारे लाइफ में ये जो दुख मुसीबत आता है क्या हम उससे निकल सकेंगे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हमें जाकर फिर ये जो बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स है यहाँ पर चैप्टर 17 को हम फिर से पढ़े, बिकॉज इन लाइफ में जो है बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। अगर आज हम लोग स्त्री के बारे में देखें तो इसका लाइफ में जो मिरेकल रहा वो it made it to the Bible, right? Because it was such a big miracle. पर अगर हम लोग सोचे कि कितना से ज़्यादा मिरेकल जो परमेश्वर ने किया होगा जो बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर हर एक मिरेकल जो है बाइबल में अगर रिकॉर्डेड रहता, देन हम लोग कितना भी पढ़ना रह लेता, वो बाइबल में नहीं हो सकता। बिकॉज आज हमारे ज़िंदगी में, तुम्हारे ज़िंदगी में भी कुछ मिरेकल्स हुआ है जो बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है, और उस समय में भी कई मिरेकल हुआ होगा जो बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन दिस पर्टिकुलर स्टोरी मेड इट टू द बाइबल। काहे? बिकॉज जो मिरेकल उस स्त्री के लाइफ में हुआ, इट वाज यूनिक। शी वाज गोइंग थ्रू अ फेज वेयर शी didn't know what tomorrow will bring. She had nothing left to take her through the next few days. But there was something that was there to take her through the next few days, which was God. And God जब prophet Elijah को वहाँ पर भेजा तो उसका life है वो बदल गया। और फिर आगे हम लोग देखता है यहाँ पर, तो हम लोग के स्टोरी में मिले हैं कि जो स्त्री रहा वो वही किया जो प्रोफेट एलाइजा ने उससे कहा, और वो गया, ब्रेड को बनाया, फिर उसमें से कुछ निकाल कर वो लेकर कर प्रोफेट एलाइजा को देता है। It must have taken a lot of faith for her to do that. क्यों? Because अगर हमारे लाइफ में जो लास्ट कुछ बचा कुचा है और वही हमारा लास्ट उम्मीद रहता है, और उसमें से भी अगर कोई आकर कुछ मांगता है, तो imagine how difficult it would be to give that small portion. अगर हम लोग स्त्री के बारे में यहाँ पढ़ता है, it may look simple because it's happening in somebody else's life. लेकिन अगर आज हम लोग अपन लाइफ में उस स्त्री के जगह पर रखें और imagine करें कि if there is a situation that we don't know how to handle, and if that's the last thing that's holding us, and somebody is coming and telling us कि God wants you to give that part of that to me as well, it would be so difficult to give that up. लेकिन स्त्री यहाँ पर वो उसके जो विश्वास रहा वो बहुत बड़ा रहा, और वो वही किया जो प्रोफेट एलाइजा ने उससे कहा। और धर्मशास्त्र आज हमें यही बताता है कि until the famine was there, which was like about 3 years, वो स्त्री के घर में खाने पीने के कमी नहीं रहा। लेकिन वो स्त्री के घर में एक और प्रॉब्लम बाद में आया, और उसका जो लड़का रहा, धर्मशास्त्र में ये बताता है कि that son fell ill. He was so ill. और उसका वो हालात हो गया, यहाँ पर वेस 19 में बताता है कि उसका जो लड़का रहा वो बहुत बीमार हो गया, और उसका फिर आगे चल के वो बीमारी से उसका लड़का मर गया। And that lady was the widow. It was her only son, and there were just 2 of them, and now the son is dead. And she was mad at Prophet Elijah. Well, she was not mad, I should say. She was upset. वो प्रोफेट एलाइजा के पास जाता है और बोलता है कि तू यहाँ पर आया, क्या यही दिखाने आया रहा कि परमेश्वर का जो रैथ है हमारे जिंदगी में आया है और वो हमें बर्बाद करने के लिए। अगर प्रोफेट एलाइजा के जगह शायद हम लोग शायद रहते तो उससे यही बोलते कि तू क्या बात करता है, when I met you, you were eating
your last meal and you were preparing to die with your son. तुमने तो हमसे खुद कहा रहा कि हम आया है last bread खाए के and then me and my son will die. So they were already going to die. लेकिन यहाँ पर जब उसको जिंदगी मिल गया और फिर यहाँ पर प्रोफेट एलाइजा से पूछता है कि तू क्या गोट के रेत दिखाने आया था. और प्रोफेट एलाइजा understood the situation. She understood what the lady है, what she was going through, that widow was going through. She was saying things because she was going through a time of mourning because उसके जो son है, he was dead. और प्रोफेट एलाइजा क्या करता है, उसको वो ऊपर वो लड़का को ऊपर रूम में लेके जाता है और गॉड से एक मांग करता है कि गॉड raise this give this child a life, कि उसका जो सन है give him life. और परमेश्वर क्या देता है उसको, परमेश्वर वो लड़का को एक जिंदगी देता है. He raises him up. God raises up that dead son. परमेश्वर आज कुछ भी कर सकता है. आज कौन से दुख मुसीबत हमारे जिंदगी में है, आज कहाँ पर हम लोग, आज कौन से ऐसा मोड़ पे है जिससे हम लोग सोचते हैं कि इस मोड़ से हम नहीं निकल सकता. This is the second big miracle in this lady's life. पहला जो रहा वो सोचता रहा कि आज हम आखिरी आटा और आखिरी तेल से जो ब्रेड बनाकर खाएगा उसके बाद हमारा जिंदगी है ये खत्म हो जाएगा. फिर यहाँ सेकंड चीज वो देखता है कि उसका जो सन है he's already dead, लेकिन God brings him back. God हुआ से भी उसको निकाल कर लेके आता है, मृत्यु से भी निकाल कर लेके आता है. और आखिरी में जो वेस हमें यहाँ पर मिलता है, जो आखिरी वेस 24 यहाँ पर बताता है कि उसको बताता है कि I know, ये लेडी एलाइजा को बताता है कि I know that God is speaking to you. She knew that this man Elijah the prophet, he was speaking what God was saying to Elijah. और ये स्त्री का जो विश्वास है वो I'm sure it must have been elevated. उसका टेस्टमनी जो है लाइफ में जब और भी लोग सुने होंगे तो उस समय भी लाइफ में उन लोग का बदलाव आया होगा, एक होप आया होगा, एक उम्मीद आया होगा. और कई जो लोग कमज़ोर थे उसका टेस्टमनी सुन के वो लोग भी मजबूत बने हुए. आज जैसे हम लोग उसके स्टोरी जब यहाँ धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं तो आज हमें भी उम्मीद मिलता है, हमें उम्मीद मिलता है. आई एम श्योर अगर आप पढ़ेंगे आपको भी उम्मीद मिलेगा. सो द मिरेकल दैट हैपेंड इन दिस लेडीज लाइफ इज गिविंग होप टू अदर पीपल. आज हम लोग अगर दुख मुसीबत से गुजरता है, आज सोचता है कि हम लोग वहाँ से निकल नहीं सकता है, तो आज हम लोग ये अपन आप से कहे कि परमेश्वर आज हमारे लाइफ में एक टेस्टमनी तैयार करता है और उस टेस्टमनी से हम दूसरे लोग को भी टच कर सकते हैं. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पे वो विश्वास बनाए रखें और जो परमेश्वर आज हमारे लाइफ में करना चाहता है हम लोग उसके मौका दे. जैसे ये लेडी की हम लोग देखता है, शी अलाउड गॉड टू इंटरवीन इन हर लाइफ. जब परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया कि तू कि feed prophet Elijah, she did, and it must have taken a lot of faith. आज हम लोग भी we need to have that faith in our life. और आज जो भी सिचुएशन है हम लोग परमेश्वर पे भरोसा करें कि वो सिचुएशन से बड़ा है और हमें निकाल कर आज एक नवा स्थान पर लेकर चाहता है ताकि वो हमें तैयार कर सके कि हम कोई और को भी एनकरेज कर सके. तो आज हम यही छोड़ना चाहता है हम लोग के बीच में. आज कौन सा मांग है हमारे ज़िंदगी में? क्या आज हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं? क्या आज हम वो उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे ज़िंदगी में होता है कि परमेश्वर एक नवा चीज़ हमारे लिए तैयार करता है, जो आज हम सोचते हैं कि हम अचीव कर सकते हैं, जो हमारा हालात ध्यान पर से होगा? क्या आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वो हालात से और ऊपर हमें ले जाकर रख सकता है? चाहे इस स्त्री के जो है
उसका जो रोड ब्लॉक रहा उसका लाइफ में, जो the thing that she was uncertain about was her groceries. She had no groceries. हमारे ज़िंदगी में आज शायद कोई और चीज़ है जिससे हम सोचते हैं कि हम यहाँ से अब निकल नहीं सकते. This is the final stage in our life. There is nothing after this. लेकिन आज हम सबको यही बताना चाहता है कि आज जो हमें फाइनल लगता है, अगर आज हम परमेश्वर के अलाउ करें, He will take that and change it into a new beginning. हमारे लाइफ को वो फिर से रीस्टार्ट कर सकता है ताकि हम उसके साथ साथ चल सके और उसकी नाम को जो महिमा गा सके और हमारे ज़िंदगी से कोई और भी इनकरेज हो सके. तो आज हम यही हम लोग के बीच में छोड़ेगा और सबके यही रिक्वेस्ट करेगा कि जैसे वो नवा साल में जाता है, लेट्स हैव अ न्यू बिलीव इन गॉड, कि हम लोग उसके एक अलग रकम से भरोसा करें कि आज जब वो ये जो विडो है उसको फाइनल स्टेप से निकाल कर, मौत के मुंह से निकाल कर उसको इतना आशीष भरे सकता है कि उसका जो until the famine was there she will have no issues, कि परमेश्वर आज हमारे लाइफ में वही कर सकता है. कि आज हम छोटा नहीं सोचे कि हम इतने में कॉन्फाइंड रह सकते हैं, लेकिन आज हम उससे भी बड़ा सोचे क्योंकि हमारे परमेश्वर सब चीज़ों से बड़ा है. तो आज हम यही वचन हम लोग के बीच में छोड़ेगा और सबसे यही आग्रह करेगा कि परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा हम लोग रखा रहा, आज हम लोग उसको फिर से रिन्यू करें और रिफ्रेश करें और जाने कि आज जो परमेश्वर है वो विल्डरनेस में भी रास्ता निकाल सकता है, डेजर्ट में भी रिवर बना सकता है और वो कुछ भी कर सकता है. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए. इसमें जब हम देखते हैं इसमें हम लोग के बहुत सारा सीख मिलता है. One of the things जब हम देखते हैं obedience to God's word, जो परमेश्वर का वचन इस प्रॉफिट के द्वारा आया इसकी इस स्त्री के पास और उसने परमेश्वर का वचन की ऑनर किया और परमेश्वर उसको आशीष से भरा. Maybe जो उसके आसपास लोग थे, they were starving, they didn't have enough food, लेकिन इस स्त्री के घर में वो खाना था. She had so much food because she obeyed the word of God through Elijah. जैसे इलाइजा की बात को टाला नहीं, उसी तरह से परमेश्वर की बात क्योंकि ये परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर ने बताया कि तुम उसके पास जाओ, वहाँ पर तुम रहेगा और तुम्हें खाना मिलेगा. लेकिन जब वो आया यहाँ पर स्त्री के घर पर, she finds that she doesn't have much, but Elijah का जो ध्यान था वो परमेश्वर की ओर था, and Elijah knew God was going to do something miraculous in her life, I mean in the widow's life. जो widows लोग हैं, we have to understand उनके जीवन जो पहले के था जो वहाँ पर they were sort of like discarded people. लोगों के बहुत ख्याल नहीं करता. Even though scripturally God wanted people to take care of the widows, but people were taking care of their own selves. But in this situation with this famine, जो बुझाल था वहाँ पर, उसके कारण से और लोग इन लोगों को त्याग दिया, and she was discarded basically. But God did not forget her. God did not forget her. God honored what He promised, and I know God is going to honor what He has promised to you in your life. All you have to do is be in obedience to God's word. परमेश्वर के वचन के आधार पर चले और परमेश्वर आशीष से तुम्हें भरेगा. Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु को. Thank you Jesus. Thank you Lord. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. Thank you Jesus. Hallelujah. Father in heaven, we just thank you for your love and your mercy, O God Almighty. I pray for your blessing upon your children, O God Almighty, upon this word that you have given us, O God Almighty, that we will be able to endure hardships that come our way, Lord. But we know that you are with us and you will take us through, O God Almighty. I pray for each and every person here, Lord God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद देते प्रभु.
one of the things just want to mention to you कि जब हम लोग परमेश्वर की आदर करेंगे, God is going to open new doors in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद अपना सभा खत्म करेंगे.
स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में तू ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरा है मसीह। Let us surrender ourselves to the Lord and let Him do great things in our lives. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. We thank you this afternoon, O God Almighty. As we surrender our lives unto you, O God, may your Holy Spirit fill us with your presence, O God Almighty. Thank you, Father. As we go out from here, but not from your presence, Lord, I just commit all of your children into your hands, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. 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 इस समय हम अपना प्रभु भोज में भाग लेंगे और